we are proceeding on this project. The name of the project is Solar System and the Order. There is a sun and a celestial body which revolve around it in like the solar system. The solar system has a large number of planets, such as sun, planets, comets, and asteroids. There are 8 planets. The planets are fixed in an orbit and they can revolve around the sun. In 2006, International Astronomical Union adopted a definition in which Pluto is not fixed. That is why the Pluto is not a longer planet of solar. The planets have a fixed path in which they revolve are called orbit. The time taken by a planet to complete one rotation is called period of rotation, and the time taken by a planet to complete one revolution is called period of revolution. We can classify the planets into two groups, that is, Jovian planets and terrestrial planets. The 4 innermost planets are called terrestrial planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, because they are mainly made up of soil and rocks. The other outermost planets are called Jovian planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, because they are mainly contain gases. Now the first planet is Mercury. Mercury is the nearest star from us, and Mercury has no satellite. The Sun has the temperature of 520 degrees Celsius, and the side does not faces the Sun have the temperature of minus 175 degrees Celsius. Now the second planet is Venus. Venus is the Earth's nearest star. That is why it is called brightest star, evening star, morning star. It completes one revolution in 225 days. It has no satellite. Now they exist. From space, they appear blue-green due to the reflection of light from water and a land mass on its surface. Earth is known as blue planet. The Earth is tilted at an angle of 23.5 degrees, and its orbital plane is angle of 66.5 degrees. And Earth is known as heaviest planet, and it has highest density. The mass of Earth is 5.97219 into 10 to the power 24 kg, and the radius is 6400 km, and the diameter is 12,800 km. And the fourth planet is Mars. The Mars is known as red planet. The Mars also has atmosphere, mainly nitrogen and traces of oxygen. Its temperature during day is 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. How they can revolve and how they can revolve in the period of revolution and rotation is why different, and why the Sun is the nearest star from us, and how they emit heat. So that is why I choose this topic. Section 5 to 7 start. The constellation is Ursa Minor, Ursa Major, Cassiopeia, Hunter, Orion, and other constellations are in the solar system, and the Milky Way galaxy also. Yes. It's America. NASA से बहुत करीब है. काम नहीं कर रहा क्या? नीचे पकड़ो नीचे. और जैसे कि हम जानते हैं हमारे अर्थ में तक 70% पानी है, लेकिन ये भी 2.5% है, इसलिए हमें पानी का पानी को बहुत संभाल के Good morning, sir, and happy Science Day. My name is Samri Dave from Class 8. My project is light pollution. Unwanted light को light pollution कहते हैं. Light pollution को photo pollution और luminous pollution भी कहा जाता है. Light pollution artificial light से होता है. It means humans के द्वारा बनाया गया light से होता है. जिसका आविष्कार 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, और ये
उनको लाइट से नजर आएगा ना। What is greenhouse effect? Greenhouse effect हम जब भी सुनते हैं हमारे मन में एक सीधी सी बात आती है, ग्रीन हाउस मतलब हरा घर। तो क्या ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर नहीं होता है। ग्रीन हाउस एक ऐसा घर है जो चारों तरफ से ग्लास से बना हुआ होता है, इवन उसका रूफ भी ग्लास से बना रहता है। इसे हम लोग प्लांट्स और फ्रूट्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। जब सन से हीट उस पर आकर पड़ता है तो नॉर्मली जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो ग्लास सारा हीट रिफ्लेक्ट होने नहीं देता, कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और नाइट टाइम में जब सन हीट देने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं होता तो जिस हीट को उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करा था ग्लास में, उसी हीट की हेल्प से वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की और फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। यही सेम फिनोमेना वर्क करता है हमारे अर्थ के साथ। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पर आकर के रिफ्लेक्ट करता है और हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ हीट स्पेस में चला जाता है। और नाइट टाइम में जब वहाँ पे सन हीट देने के लिए अवेलेबल नहीं होता है तो अर्थ पर रहना नामुमकिन है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस टॉपिक को अपने मॉडल के लिए मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ग्लोबल वार्मिंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसे कंट्रोल में लाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वाइव करना नामुमकिन है, लेकिन आइए उसके डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्व करता है। इसे कम करने के लिए हमें ट्रीज को कट करना कम करना पड़ेगा, हमें प्लांटिंग करनी पड़ेगी, हमें व्हीकल्स कम यूज़ करना पड़ेगा और हमें फॉसिल फ्यूल्स कम चलाना पड़ेगा। तो आइए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेते हैं और इन्हीं चंद बातों से मैं अपना मॉडल Parliament in the Soviet Union, the G20 summit, there is the topic of global warming, which will lead to many catastrophic changes. है जो आकाश होता है जब मोल्टी रॉक एश स्केप होता है अर्थ तुम्हारा तो गड़बड़ी कितना हम एक वेट के तो उसी को हम गलती आप वोल्केनो लैंड और ओशियन दोनों में पहुंच गए और वोल्केनो से हम वोल्केनो को ऐसे कर सकते हैं कौन शेप अपेयरेंस और जब वोल्केनो क्यों आता है? अंदर नहीं चलता। ये जब प्लेट का मूवमेंट तुम देखो ना, नीचे देखो ना, और उसके अंदर प्लेट इधर इस तरफ से देखो। और रीजन 1 मिनट में कहाँ चला? अभी है जिससे काम हो जाएगा तब मिलेगा। ऊपर उठने लगता है प्रोसेस दिखाएं इसको। क्या है मटेरियल के बताते जाओ। तो ये है क्या कहते हैं और ये बेकिंग सोडा और ये कुछ फूड कलर और ये है विनेगर। ये मटेरियल क्यों इंसर्ट किया आपने, क्या शो करना चाहते हैं इसे? सर जब वो ये होता है सर मैं इसके बारे में आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगी। इनसे किसानों को क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला कि सर रेन डिटेक्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रेन डिटेक्ट करता है और अगरबत्ती नहीं था इसके अंदर। रेन डिटेक्टर एप्लीकेशन है जो रेन को डिटेक्ट करता है और अलार्म को क्लोज करता है। सर मैं आपको इसके यूज़ के बारे में बताऊंगी। सर ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में आता है और
किसान धूप में अपने अनाज को सुखा रहे होते हैं, जब अचानक से वर्षा होने के कारण उनका 70% से ज़्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है सर। इसीलिए मैंने ये एक प्रोजेक्ट फ्यूचर में इस पर और भी बहुत सारे डिवाइसेस ऐड करूँगी, जिसकी वजह से ये रेन होने से पहले ही हमें बता देगा कि रेन होने वाली है। सर जब रेन का फर्स्ट ड्रॉप इससे सेंसर पे गिरेगा तो सर इसमें से नेगेटिव टर्मिनल सर अगर कोई आदमी इनफेक्ट सोया होगा तो उसकी आवाज़ और लाइट से वो जग जाएगा। This presenting model is showing the glow of warning. Sir, I am Latika from class 7. As we know, the fencing of glow warning that affect our lives in many ways. इसको क्यों घुमा रहे हैं? Say glow. अच्छा कवर करने का स्विच ऑन किया। मदर वहाँ होती है। As we know, Okay, well the done. sun traps the greenhouse gases like CO2, CH4 that affect the different sources like chimneys, the different places, cutting of trees, etc. Mainly हिंदी में बोल सकते CO2, mainly CO2, CO, the sun traps समझाया हिंदी में समझाया हिंदी में पिघल के जब सन से हीट हमारे अर्थ के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा करते हैं जिससे सन से सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है अर्थ के द्वारा और ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर में लगने लगते हैं, जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो हीट रहता है वो स्पेस में चला जाता है। जब नाइट टाइम में वहाँ पे सन हीट देने के लिए नहीं अवेलेबल होता है, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यही ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर से हीट रिलीज करते हैं। Indian desirable change in the composition of air is called air pollution. There are two types of air pollution: primary air pollution and secondary air pollution. Primary air pollution को direct atmosphere में secondary air pollution को जो किसी दो चीज के रिएक्ट होने के बाद air pollution ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे और अगर एयर पोल्यूशन हो रहे हैं तो उसके वजह से अफेक्ट होंगे और अफेक्ट ये होगा कि अगर ग्राउंड वाटर एसिड होंगे उसकी वजह से हमारे घर जो है वो डिस्कलर हो जाएंगे। इसमें जो है वही एयर पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाके एसिड बनाते हैं और वो एसिड रेन होने के लिए बहुत सारे घर के कलर डिस्कलर हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग को रिलीज ड्राइव करना चाहिए और जितना तक हो सके ये हम लोग साइकिल का यूज़ करें और व्हीकल बहुत ही कम यूज़ करें और ज़्यादा छोटी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और घर से जितने भी घर हैं यहाँ पे वो भी एक लाइन से होना चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल्स ये एक लाइन में होना चाहिए और बिजी स्टेट में अगर बदलिए बिजी स्टेट में भी वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा चलेगा ज़्यादा। एग्जाम्पल ऑफ सिटी कोई ऐसा सिटी है एग्जाम्पल जो इस तरह की जो बात आपने बोली है जिस तरह से प्लान है इंडिया में जैसे सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लेदर का फैक्ट्री है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ तो पॉल्यूशन है लेकिन वेल मेंटेन सिटी कौन सी है? सर इंडोर क्या है कि वहाँ पर जितने भी पोल्यूशन होते हैं वहाँ की सरकार ने पहले लोगों को प्रिपेयर किया कि पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर किया कि सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे एरिया में यहाँ पे म्यूनसिपल
फिक्स टाइम पे आती है, लेकिन वहाँ पे जैसे कि आपका गाड़ियाँ वगैरह तो वहाँ पे जो गाड़ी आती है, गाड़ी में भी 2 टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं, एक गीला कचरा वाला और एक सूखा कचरा वाला। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा को रिसाइकल करती है। ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ के दिवाली में भी कुछ ना के बराबर ही मतलब फायर क्रैकर्स हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो वीडियो इन्होंने बनाया था पहले, तो वो वीडियो से चले एक्सप्लेन करो। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो क्या यूज़ किया बताओ, इसको एक्सप्लेन करो कैसे होगा। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बता सकता है सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और इससे कोई यहाँ से वेव निकलता है जो उससे रिफ्लेक्ट होकर इसमें आता है, और उससे रिफ्लेक्ट होता है उसमें। सर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अब सेट करना पड़ता है डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और सामने वाले ऑब्जेक्ट से एक वेव निकलता है, दूसरा रिफ्लेक्ट करके इसमें आ जाता है। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे मतलब वेव सिस्टम आ रहा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस सेट करना पड़ता है। मानिए कि हम 1 मीटर सेट करें, 1 मीटर दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ से वेव निकलेगा और रिफ्लेक्ट करके इसमें आएगा, ये जब वहीं पर रुक जाएगा फिर अलार्म मिलेगा। ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। और सर इसमें मोटर ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर सर कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके मतलब पहुँचाता है। और सर ये बैटरी यूज़ की है 3.7 वोल्ट का 3 बैटरी यूज़ किया, और सर 2 22 और आरडीओ में यूनो का यूज़ किया। आरडीओ में यूनो एक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है जो कि दूसरे डिवाइस को प्रोग्रामिंग करने में मदद करता है, और ये डिवाइस जिस डिवाइस से कनेक्ट रहता है वो स्लेव डिवाइस रहता है और ये मास्टर डिवाइस होता है, ये कहेगा वो करेगा। और इसमें हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है सर यूएसबी की मदद से। फिर यहाँ पे ये यूएसबी केबल यहाँ पे लगाया जाता है, और किसी लैपटॉप से किसी भी पीसी से इसमें सर आरडीओ इंस्टॉल करके उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। सर हम लोग किए हैं रोबोटिक्स का इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? सर इन्वेस्टमेंट 2700 है। मार्केट प्राइस क्या है इसका? मार्केट प्राइस है 3,500। Our life is not possible. Suppose it will not rain, there is no water to irrigate the crops, and crops get destroyed, and there is a shortage of food. The water of river, lake, ponds, and wells get dry, and the plants and trees will not grow. And in the last, on the surface of the earth, the amount of the water is always fixed. This is because the water is not lost. It changes only form and circulates around the land, sea, and air. This circulation is called water cycle. This is the importance of water cycle. So, sir, we have represent the water cycle. Next, my friend will explain. There are 5 processes in water cycle: evaporation, condensation, precipitation, runoff, and percolation. The first process is evaporation. Water evaporates from ponds, rivers, lakes, oceans, and seas, as well as plants and animals, and change into gas and combine to Earth's atmosphere. The water vapor change into droplet to form clouds. Now the process of precipitation. The droplet in the clouds is extreme small thousands of droplets combined to form a drop. सर इकट्ठा होकर जब बारिश होती है Sir, in very high clouds, water freezes into a crystal of ice. Sometimes rain passes through a very cold layer of air and freezes into hailstone.
So, the deposition of water from our atmosphere on change in any form, या तो वो लिक्विड में हो या सॉलिड में, उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। सर रेन, स्नो, हेल, ये सब प्रिसिपिटेशन का ही एक टाइप है। Now is the process of runoff. जब सर प्रिसिपिटेशन होता है तो वाटर जब सरफेस पे आता है, लैंड और ओशियंस का जो बीच में जो सरफेस होता है, ओशियंस नीचे होता है, लेवल जो है उसका नीचे लेवल होता है और लैंड का लेवल हाई लेवल होता है। जब प्रिसिपिटेशन होता है सर, जब वो स्नो गिरता है या वाटर गिरता है तो वो रन ऑफ करके बैक इस ओशियंस में आ जाता है, और इसी को हम लोग सर रन ऑफ भी कहते हैं। और जब इस तरह जो है वाटर जो रिवर्स फिर से ओशियंस में आ गया, इसी को हम लोग सर वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल का सर ये इम्पोर्टेंस है। अगर सर हम लोग वाटर का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, फिर भी जो अर्थ पर जो वाटर का जो अमाउंट है वो कभी घटता नहीं, वो कभी लॉस्ट नहीं होता। ये इसलिए होता है कि वाटर सर्कुलेट करता है, कभी सी में होता है, कभी एयर में होता है, कभी लैंड में होता है। अगर सर ये सर्कुलेट नहीं करेगा तो हमारा जो अर्थ पर जो है वाटर धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इस अर्थ पर वाटर का नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए जो है वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट को तैयार किया। Just as you have said that water is being drying up. So in which state the water has been dried? By which government? By which state? The Chief Minister has told that there is no water willing to be poured. कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कंप्लीट ड्राई दिखा दिया है? ड्राई दिखा दिया, पानी है ही नहीं। डिजर्ट एरिया सर। स्टेट कौन सा? स्टेट सर राजस्थान, स्टेट को सर राजस्थान है। Class 6, we present an air cooler project. So, the system will take air in surrounding and the cool air for cooling pad. Sir, it's called air cooler, sir. Parts of air cooler. एक्सप्लेन करो अच्छे से, हिंदी में बोल सकते हो। तुम बोलो, पार्टनर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पर्पस क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एयर कूलर? सर पहाड़ के सराउंडिंग में सर ग्लोबल वार्मिंग बहुत है सर, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रूम को कूल रखने के लिए सर एयर कूलर का हम लोग सर यूज़ करते हैं। कैसे बनाया इसको? प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, बनाने का तरीका क्या है? सर फैन, मोटर, सेल और वायर से, लेकिन बैटरी से सर सर सेल से करने से सर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा सर, और सोलर पैनल से सर ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। सोलर पैनल को मैंने प्रोवाइड करना है, सन एनर्जी। ठीक है, तो इसको दिखाएं, मैकेनिकल सिस्टम दिखाएं इसका। सोलर कहाँ से गेन करेंगे? तो ठीक है, गुड इनफ। First, I wish you को मार्किंग बोले, एक्सप्लेन करें, हिंदी में बोले। हाँ, मेहनत क्या इसको बताओ। such as the moon orbiting around the earth, artificial satellites such as the International Space Station orbiting with the earth made by human. What is the function of satellite? Today, my topic is drip irrigation. ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन है सर जो पानी पहुंचाने में मदद करता है, और सर पानी पहुंचाने में और भी इरिगेशन मदद करता है, मगर सर ड्रिप इरिगेशन से ये फ़ायदा होता है कि पानी पहुंचता है,
और सब में सर इसमें सॉइल इरोजन का भी बहुत कम, सॉइल इरोजन होता ही नहीं सर इसमें। और सर ये पूरे जो चलता है ड्रिप इरिगेशन वो मैकेनिकल एनर्जी में चलता है। और सर इससे ये फ़ायदा है कि आप पानी का बहुत कम वेस्ट होता है। जैसे सर आने वाले जनरेशन में पानी बहुत कम है, बहुत कम होने वाली है। जैसे सर राजस्थान एरिया, तमिलनाडु में सर जैसे पानी बहुत कमी है, वैसे सब जगह में हम लोग ये फिट कर सकते हैं। प्रोसेस दिखाएं सर। प्रोसेस स्टार्ट द प्रोसेस। सर मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, अंदर मोटर लगा हुआ है, इसमें डाले, यहाँ पर बटन, यहाँ पानी आ गया सर, इसमें पानी आ गया, यहाँ पे आ रहा है सर, यहाँ सर गिरा, उसके बाद सर maximum use of water यस सर and लेस lot of water. यस सर। I am how you have volcano adapt. मैं इसमें ब्रेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। Why orange? ऑरेंज क्यों डाला? सर ऑरेंज से ज्वालामुखी का कलर निकलता है, कलर निकलता है। और लास्ट में मैं डालूंगा लेमन जूस। So now we can see how volcano adapt. Chemical reaction. एक्सप्लेन करें हिंदी का अच्छे से। चलिए क्या हुआ, ये वोल्केनो क्यों आता है हमारे? वोल्केनो असल में धरती बेसी गर्म होने के कारण हम लोग का धरती से वोल्केनो निकलता है, इससे हम लोग का ज्वालामुखी तो फटता है, इसमें से ये ज्वाला निकलता है। वो तो ठीक, लेकिन वो ज्वाला डिफरेंस है सर वो ज़्यादा महंगा मिलता है और ये सस्ता है, और इसमें आप पाइप लगा के बाहर में फेंक सकते हैं हवा को, इसलिए। और आपके रूम में भी लग सकता है, आपके रूम में आज जैसे गर्म हवा है तो गर्म हवा को बाहर फेंक देगा, और इसकी वजह से आपका रूम ठंडा है। इन्वेस्टमेंट पीछे आ जाता है, कैमरा में जूम भी कर सकते हो। साउंड की काम है, का कैमरा है। ऐसा सिंचाई है जिसमें हम पानी और खाद की बचत, इस सिंचाई में पानी और खाद की सबसे ज़्यादा बचत होती है, और पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह के इरीगेशन में हम सर खेत में लगा सकते हैं, जिससे हम सॉइल इरोजन का कुछ भी नहीं होता ही नहीं इस तरह के इरीगेशन में मजबूत कम लगते हैं। इस तरह के इरीगेशन में सर और मजदूर को ज़्यादा ये आसान है। जनरेटिंग छोटे थे सर, प्लांट सब पूरा ये हो जैसे अगर कोई ये क्या है, ये रूम क्या है? ये बैटरी से ये रूम ये क्या बनाया है? पैनल रूम है। इसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्या क्या इस्तेमाल किया इसमें? एक किसान का एफर्ट कर सकता है ये टोटल इसमें कितना कॉस्ट है? 1 मिनट बड़े लेवल पे जाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा? अगर बड़े लेवल बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है। Very first wind turbine was made by Professor James. सब याद कराए जाने नहीं जाता है, बैटरी से चल रहा है, जब विंड आएगा कंज्यूम किया जा रहा है ये जो जनरेट कर रहा है उसको तुम स्टोर कैसे करना है? थ्रू बैटरी और या डायरेक्ट? डायरेक्ट।
क्या है आपका? As we know, air is a mixture of many gases. In several areas, the air is polluted due to gases which we hold from industries, motor vehicles, and factories. These gases are greenhouse gases which contains carbon dioxide. हाँ, समझाओ, हिंदी में समझाओ इसको। उसकी आवाज नहीं निकल रही है। चलो माइक पे लो, माइक से बोलो। हैप्पी ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिससे आप अगर घर से कहीं चले गए 10 दिन या 15 दिन के लिए, और मान लीजिए आप दिल्ली चले गए, आपके घर में तो प्लांट लगाएगा वो तो सूख जाएगा। उसके लिए आप ये ऐसा सिस्टम है जिससे आप कॉल कीजिएगा तो इसमें ये पानी निकलेगा चारों तरफ, और इससे कॉल करने के बाद ये पूरा पानी जड़ तक जाएगा। जैसे आपका हाथ सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? नाम क्या तुम्हारा? कॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन बाय ट्रेंड पर। अच्छा, ये ऐसा है कि अगर हम लोग घर से चले भूल गए कि पानी भी देना है कमरा में, आप मोबाइल से जब कॉल करेंगे ऑटोमेटिक वाटर स्टार्ट हो जाएगा। डिवाइस रिसीव करेगा। कौन सा डिवाइस रिसीव करना, क्या लगाया है, क्या क्या लगाया है इसमें? इसमें कनेक्टिंग स्विच है, फोन जाते ही वो ग्लास में तले सर इसमें कनेक्टिंग स्विच है जिससे मोबाइल का साउंड कॉलिंग ड्रिप इरिगेशन मतलब बताओ सर को। चले गए, जैसे घर से बाहर चले गए दिल्ली, तो आपके ये घर तक गमले में तो कोई पानी देने वाला बचा नहीं है, फिर फैमिली के साथ चले गए। इससे आप अगर ये प्लांट लगाइएगा तो इससे आप अगर कॉल कीजिए कहीं भी से कॉल कीजिए दूसरे देश से कर सकते हैं। कॉल करने से ये मशीन स्टार्ट होता है, मशीन ये मोटर स्टार्ट से ये टैंकी में पानी आता है, टैंकी से ये प्लांट हो जाता है। दिखाते हैं आपको। तो ये नेट से चलेगा? नेट से चलेगा। देखो तो कॉल कर रहा है इसमें। हाँ, तो नेट से अटैच किया जाएगा। करके दिखा, फिर करके देखो। क्या चीज पानी आएगा, फिर इससे थोड़ा टैंकी में भरने में टाइम लगता है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पानी तो इसको नाम क्या पानी दे दो। पानी शॉर्ट पॉइंट मिल बताओ बेटा। अब इसमें जो तुम्हारी कमी रह गई फिर पढ़ना क्या छूट गया था बताने के लिए। अब जो तुम पढ़ लोगे ना अभी तो विंड नहीं है, वैसे हम बैटरी यूज कर रहे हैं। ऐसा मशीन जिससे आप घर से बाहर चले गए हैं कुछ दिन के लिए 10 दिन के लिए, इससे आपका प्लांट प्रोग्रेसिव ड्रेन होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या नाम हुआ? फिल्ट्रेशन बताओ बाबू। पंडाल के नीचे आ जाओ। जितने बच्चे इधर उधर नहीं कर रहे हैं प्लीज पंडाल के नीचे आ जाओ। प्लीज होके हमारे इसमें जो प्रेशर बनता है सबसे ज्यादा छुट्टी और नहीं होता और फोकस और एपिसेंटर में क्या फर्क? फोकस यहाँ से जिस एरिया से एनर्जी रिलीज फोकस एपिसेंटर वो जहाँ वेव्स निकला ठीक उसके वर्टिकल ऊपर जमीन पर जो सरफेस वो एपिसेंटर क्या हो? एपिसेंटर वो ऊपर में जिस जगह 17 कम करना क्या करना ये गिरेगा तो नुकसान होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि अगर एक तो गिरे ना
दूसरा गिरे तो कम नुकसान, क्या करें? सबसे मतलब बिल्डिंग बनाते उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए फाउंडेशन मजबूत है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक का असर ठीक होगा। और दूसरी बात ये अगर आपके रूम में अर्थक्वेक आया तो बचाओ की बात लोग क्या करते हैं बच्चों को और हमारे विदेश का है उनको बताया। सदर असातिज़ा-किराम और मेरे हमरी अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अर्जुन मक्की दर्जा क्यामत का एक तालिब इल्म हूं। आज आप हज़रात के सामने मौजू पर इज़हार ख्याल करना है। इंसान की जिंदगी में साइंस बहुत अहमियत रखता है। साइंस से इल्म, दुनिया की पैदाइश, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मौजूदा दुनिया बिल्कुल बदल जाएंगी। आने वाली नस्लें आज के जमाने की कदीम किस्साराजी इजादात के नाम से याद करेंगे। आंख जो कुछ देखती है के आप बता रही वक्त की वजह से मुमकिन नहीं, लेकिन यह वसूल के साथ कहा जा सकता है कि सही है, जिससे इंसान के लिए वाकई जन्नत है। हज़रात, प्याले में दूध भी पिया जा सकता है और शराब भी। प्याले का तो कोई कसूर नहीं, हर घर में छुरी होती है जिससे सब्जी काटी जा सकती है। इन्हें हकीकते दरिया की क्या खबर अजर है, इन्हें हकीकते दरिया की क्या खबर अजर है, जो अपने रूह की मजार से नहीं गुजरे। हज़रात, आज साइंस के बदौलत दिनों और घंटों का सफर पलक झपकने पर हो रहा है और यहाँ तक के चांद और मैं यह कहने में हक बजानी हूँ कि साइंस इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है और इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है और इंसान की जिंदगी का मकसद साइंस पर है। शुक्रिया। Let's start to demonstrate this project. Thank you. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं जोहा, जिनका I am Joha Fatima from class 7 and I am feeling extremely blessed as I got this chance to deliver speech on this great occasion and want to thank to you all from the core of my heart to give me this great chance. The occasion of National Science Day reminds us all that we must explore the world of science to enlighten ourselves with new knowledge. The National Science Day is celebrated in India every year to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 February 1928. For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize on the topic of importance of science. Friends, science is important because it teaches understanding of natural phenomena. Science helps to stimulate curiosity in finding out why things happen in the way they do. Science teaches us methods of inquiry and investigation to stimulate creative thought. Science is a great service for mankind. There are many machines which made our life comfortable. Buses, cars, sewing machines, mixies, grinders are used by us with its use. And let's use the science in a holistic way. Thanks. Its chemical substances is called pollution. Pollution included the quantity of water, air and land. Many times people pollution. Burning of coal to create electricity pollutes the air and industrial and home generated garbage and soils in land and water. Pesticides, chemical poisons. So we all have gathered here for the National Science Day. So you all might be knowing why the Science Day is being celebrated. Also everyone knows that due to the Raman effect by the Sir C.V. Raman,
For this he was awarded the Nobel Prize in 1930. So by that year, not by that year, but in the Parliament, the Supreme Court and everyone, the Government of India, they came to a conclusion that that it will be celebrated 28th February as a National Science Day. So I can clearly see what is the zeal, the enthusiasm, the passion, the determination, right from everyone. Right from 4th class students I have seen, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, everyone has given their commitment to their very best. So once again, I would like to thank everyone and Sufyan Sahab. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल क़याम एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल रकीब साहब का और न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल डायरेक्टर एनर्जेटिक आर्किटेक्ट इंजीनियर सुफियान अहमद साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को इस लायक समझा कि इतने बड़े ओकेज़न पे नेशनल साइंस डे कोई छोटा मोटा ओकेज़न नहीं, ऐसे मौके पर दावत दिया ताकि बच्चों में एक उत्साह, एक एनर्जी, एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं। बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। इस स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल जो अब हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही सोबर, बहुत ही इंटेलिजेंट, वक्त से पहले इस दुनिया से कूच कर गए। मैं उनकी खिदमत में खराज अकीदत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता है कोई। जिंदा रहेगा तब तक उनके नाम भी जिंदा रहे। बच्चों, ये नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सिलसिला 1986 से शुरू हुआ। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हिंदुस्तानी साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया। उसके बाद 1903 नंबर का खेल है। उस टाइम में जो क्वेश्चन आया, बहुत अच्छे ऐसे होते हैं, खूब अच्छे से पढ़े रहते हैं, लिख दिया, अच्छे मार्क्स तो हो गए। बहुत अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जो खूब अच्छे होते हैं पढ़ने में, किसी वजह से एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, या उन्होंने उस टॉपिक ही को सही से नहीं पढ़ा, उनके नंबर ख़राब आ गए, तो ये जजमेंट नहीं है। ये जहाँ भी स्कूल में हम जाते हैं इसको रेस करते हैं। हम दिल्ली भी गए हुए थे पिछले साल, वहाँ के टॉप ब्रास स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मेरी मीटिंग हुई, बड़े मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। लोग हैं, उनका अपना अपना सोचना है। हमारे मज़हब इस्लाम में भी तालीम हासिल करना फ़र्ज माना गया। अब इसको मैं ब्रॉड में जाना नहीं चाहता हूँ, किस तरह की तालीम कहाँ पर हो। बहरहाल तालीम का मकसद तालीम, सही गलत की पहचान, हराम हलाल की पहचान, तालीम का मकसद ही है। प्रोफेसर रकीब, जब मैं अररिया आया था तो प्रोफेसर रकीब साहब से मेरी बातचीत अक्सर बैठक होती थी। चूँकि मेरे पास भी वक्त अफराद होता था, मैं नया नया था तो मेरी प्रैक्टिस तो उतनी अच्छी थी नहीं, हम स्ट्रगल कर रहे। तो उनके अंदर एक कुढ़न हमने महसूस किया। वो पहले बैंक में एम्प्लॉय थे, तो उनके अंदर एक फिक्र थी कि हम तो बैंक में सिर्फ अपने लिए अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी को तो कुछ दे नहीं रही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, हमारे घर के लिए भी एक समझ बुनियाद का काम। तो उनके अंदर ये फिक्र थी कि एक स्कूल कायम करें, और हमेशा इसके लिए फिक्रमंद रहते थे। और आज देखिए एक उन्होंने अच्छा दस्तगाह खड़ा कर दिया है, जिससे बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। मेरे बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़े, प्राइमरी एजुकेशन जो है मेरे बच्चों की भी इसी स्कूल से, आज दूसरे जगह पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप हजरात से दुआ की भी दरख्वास्त है सारे बच्चों के लिए, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट किसी पहचान के लिए, सारे इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि सारे बच्चे खूब मैदान में आगे बढ़ें। प्रोफेसर रकीब साहब की खिदमत में उनकी इजाज़त से मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो सफर छोड़ जाऊँगा। ये उनके लिए बहुत माकूल शेर है।
आज उनके स्कूल के बच्चे मैं देख रहा हूँ कि हर जगह कामयाब है, ज़िंदगी के हर फील्ड में आगे आगे। बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग फ्रंट रो में रहें। अगर फ्रंट रो में नहीं रह सकते तो डिफरेंट रहें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखें। भीड़ में या डिफरेंट से भी आइडेंटिटी बनती है। अपने आप को डिफरेंट प्रेजेंट करें। लोग ये कहें कि देखिए ये इस फील्ड का लड़का है, कोई ज़रूरी नहीं है 99.9% ले आए मार्क्स, नहीं 80% ला के भी अगर आप दूसरे फील्ड में, स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, क्रिकेट में है नंबर 1, डिफरेंट फील्ड है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। किसी भी फील्ड में कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, आर्ट्स में भी अगर आप अलग रो में हैं, फ्रंट रो में हैं, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए, लोग आपको आपसे पहचानें, ये एक्चुअली पहचान हमारी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि सारे टीचर जो भी हैं, जैसे स्कूल में भी करियर गाइड एकेडमी में है या और कहीं भी, सब लोग ज़रूर कोशिश है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर जो है वो परफॉर्म करें। गार्जियन और टीचर दो ही लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें हर मैदान में, बाकी कोई नहीं चाहता। तो बच्चों से भी ये दरख्वास्त है कि वो भी मेहनत करें, टीचर्स के और गार्जियन के टैलेंट को अपनी कामयाबी के लिए एक्सप्लॉइट करें। कहाँ पर हम इनके एक्सपीरियंस को हासिल करके अपने अंदर जो है वो इम्बाइब करके बहुत आगे बढ़ें, हमेशा ये कोशिश रहे। और जो बच्चे 10 से तो आप अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं, लेकिन आपका कोऑपरेशन कुछ नहीं है, तो कहाँ से बच्चे अच्छे पढ़ पाते हैं? स्कूल में बच्चे 6 घंटे 7 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं, बाकी 16 घंटे तो आपके साथ है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ की गोद जो है पहली दरसगाह, तो वहाँ बच्चे मेन घर से सीखते हैं। अब आप देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे अच्छे करते हैं, जो किसी हालात के शिकार की वजह से जो पेरेंट्स बहुत अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते उनके बच्चे थोड़ा एवरेज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल के जो है मैनेजमेंट है, स्कूल की लाइबिलिटीज़ है, उनको भी परफॉर्म करें, टाइम टू टाइम परफॉर्म करें। देखिए उसकी वजह क्या है, जब आप पढ़ाई की स्कूल की ज़रूरियात को सेकेंडरी रखेंगे ना, तो आपके बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो भी तालीम को सेकेंडरी रखेंगे। देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स जो है वो तालीम को सब काम करने के बाद लास्ट खाने में रखते हैं, तो वो भी उसी तरह पढ़ेगा। फिर उस बच्चों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो आप ज़िंदगी का जो एक मामूल बना हुआ है, तालीम को प्रायोरिटी दी, तभी आपके बच्चे तालीम को प्रायोरिटी देंगे, वो हमेशा अच्छे करेंगे। तो मेरी गार्जियन लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि तालीम की ज़रूरियात को आप प्रायोरिटी दें। वो और बच्चों के साथ रहना, और मैं देखना ये पसंद करता हूँ कि हमारे बीच के बच्चे आगे बढ़ें और अररिया का नाम रोशन करें। तो मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, लेकिन एक बात कहूँगा, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। आपके अंदर हर तरह का ज्ञान है, आपके चारों तरफ विशेष ज्ञान है। आप घर से लेकर स्कूल चलने में, पढ़ने में, हर जगह कुछ स्पेशल पाते हैं जिसको आपको एडॉप्ट करना पड़ता है, जो आपको सूट करता है। अभी फिलहाल सबसे अहम मुद्दा जो विश्व के सामने है वो है सेव वाटर एंड सेव एनर्जी। आपके लिए दोनों जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और ये धीरे धीरे से लेकर बुढ़े तक को इसमें ध्यान रखना होगा कि हम प्रकृति से खींच रहे हैं, नेचर से हम लेते जा रहे हैं, नेचर को कुछ दे नहीं रहे। हम जानकार लोग हैं, आप देखते हैं किसान पुराने पेड़ को जल्दी काटना नहीं चाहते, क्योंकि वो पानी का संरक्षक है, जमीन के पानी को वो बचाता है, वो पानी और हवा दोनों का रक्षक है। तो हमें हर स्टेज पर हम चलते हैं, ठोकर लगती है,
तो हम फिर अगला कदम संभल के बढ़ाते हैं कि हमें ठोकर न लगे। वही है विशेष ज्ञान जो हर स्टेप पर आपको जगाता है कि आपको क्या करना है। विज्ञान के नाम पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर का बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच बच्चों के लिए। बच्चों, जो हमारे पेरेंट्स या जो हमारे गेस्ट आप लोगों को बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने, ये आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मेरे दो बच्चे अभी फिलहाल इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने नवंबर में दोनों का एडमिशन यहाँ पे कराया है। दोनों बच्चे काफ़ी जागरूक और काफ़ी मोटिवेशनल हैं और मैंने इस 2-3 महीने में बच्चों को देखा कि काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। मैं इसी तौर पर जो सीनियर टीचर्स हैं वो प्लीज स्टेज पे आ जाए। सीनियर टीचर्स, जो हमारे गार्जियंस, प्लीज जो है बैठे हुए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एक किसान इसको एवॉर्ड कर सकता है कि जो बच्चे बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं और कोई रिजल्ट बच्चे का एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ऐसा मैं इसमें अपने करियर गाइड के लिए छोटा लेवल में बनाया और मैं ध्यान कर रहा हूँ कि सब मार्गदर्शन में बच्चों को इस तरह मोटिवेशनल प्रोग्राम के अंदर इस तरह मोटिवेट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। अधिकता में सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे 9th या 10th 11th 12th के बच्चे हैं इस तरह का प्रस्तुतिकरण करते हैं। We also call the Earth as a satellite because it revolves around the sun. And the Earth has only one satellite that is तो थैंक यू प्रोफेसर रफीक ने बताया कि नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है। रमन इफेक्ट था, श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इन्वेंट किया, 1928 में उन्होंने इन्वेंट किया, 1930 में उनको नोबेल प्राइज। लेकिन ये आइडिया डेवलप कैसे कि साइंस डे मनाया जाए, इसमें एक मेरी भी भागीदारी। मुझे इस बात का गर्व है कि साइंस डे इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाए, इसमें एक मेरी भी भागीदारी। इसका इतिहास ये है कि जब मैं जॉब कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसका एक सेक्शन है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। उस वक्त उस सेक्शन के हेड थे डॉक्टर NK सहगल, नरेंद्र कुमार सहगल, जो मेरे बॉस थे, और डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो थे प्रोफेसर यशपाल। तो 1986 में मैं 1982 से लेके 1985 तक वहाँ काम किया एज ए जूनियर साइंटिस्ट। उसी टाइम में ये अवधारणा बनी कि साइंस डे मनाया जाना चाहिए, कोई एक फिक्स किया जाना चाहिए। तो 87 से नेशनल साइंस डे मनाना शुरू किया। तो मैं इसका एक पार्ट रहा, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है ये सारा डेवलपमेंट, ये सारा कंसेप्ट हमारे सामने हम लोगों की बैठक करके ये तय हुआ था कि 28 फरवरी को पूरे देश में नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। सवाल ये है कि साइंस क्या है? साइंस एक खोज है, साइंस एक नॉलेज है, आम धारणा है। लेकिन साइंस दरअसल सोचने का नजरिया, इज द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका साइंस। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे आपकी जिंदगी में किस हद तक घुस चुका है, दाखिल हो चुका है, आप जाने अनजाने आप इसके पार्ट
आपको मैं बहुत एक आसान तरीके से समझाऊं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। आज भी गूगल पे अवेलेबल है, एक क्लिक कीजिए, गूगल आपको ये बता देगा कि पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लड़ाई कब हुई थी। गूगल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अभी भी ए फॉर एप्पल बताते हैं। मैं इस गूगल से कहानी आपको बताता हूँ। एक हफ्ते पहले मेरी भतीजी है जो किसी स्कूल में पढ़ती है, बच्ची है, स्टैंडर्ड 1 में है। एक वो होमवर्क मेरी रात में हमसे कराती है, लेकिन आई वो जंबल वर्ड लेकर। तो एक दो तो मैंने सॉल्व किया, एक वर्ड में मैं फिर फंस गया, LLIPAC कुछ करके था। तो मैं बहुत सोचने लगा। उसने कहा झट से आप गूगल करिए। अब मुझे ये पता नहीं था कि गूगल में जंबल वर्ड्स भी मिलेंगे। तो मैंने उस जंबल वर्ड को गूगल में डाला और गूगल ने एलिप्स करके वो वर्ड दे दिया। ठीक है, तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी और साइंस कहां हम जा चुके हैं। लेकिन ये गूगल करता कैसे? गूगल एक सर्च इंजन है, वो करता कैसे? आप सुफियान इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे कि पूरी दुनिया हो रहा है। वो इतनी बड़ी क्रांति है टेक्नोलॉजी के इसमें युग में कि अगर आप चाहें कि इस भाव पे, इस एहसास पे हम एक कविता लिखेंगे और उसको कुछ कीवर्ड दे दें, तो वो चैट जीपीटी आपके लिए एक कविता तैयार करके आपको दे देगा जो आपके नाम से हो। तो आप ये सोचिए कि हम कहां हैं, टेक्नोलॉजी कहां है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है क्या चीज। कुछ जानकारों का मानना है, अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो कुछ जानकारों का मानना है कि अगली जो भी लड़ाई होगी वो जमीन पे नहीं लड़ी जाएगी, वो कंप्यूटर पे लड़ी जाएगी, साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी। एग्जाम्पल किया किसी ने कि मान लिया जाए कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करना चाहता है, वो एक कंप्यूटर का वायरस आपके सिस्टम को हैक करके उसमें डालेगा और आपका जो तेल का पाइपलाइन यहां से वहां तक जा रहा है उसमें इतना ज्यादा पंप कर देगा तेल कि वो पाइप फट जाएगा। इसलिए अब लड़ाइयां जो है साइबर स्पेस में होंगी। तो साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन साइंस के साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि साइंटिफिक थिंकिंग लोगों की खत्म हो रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का खत्म हो रहा है। लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ध्यान देना चाहिए, चीजों को एनालाइज करना चाहिए, एनालिटिकल एनालाइज करना चाहिए, रीजन और लॉजिक के साथ एनालाइज करना चाहिए चीजें। हम फेक न्यूज पे इतना ज्यादा क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? क्योंकि हम एनालाइज नहीं करते, हम रीजन नहीं ढूंढते हैं, हम फैक्ट चेक नहीं करते, इसलिए ये हो रहा है। और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, IAS बनना चाहता हूं, IPS बनना चाहता हूं, साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, ये शायद किसी के जहन में नहीं। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, ये जहन में नहीं। ये सारे अनएक्सप्लोर्ड फील्ड का फील्ड उतना ही बड़ा होता जा रहा है। आज सबसे बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है साइबर सिक्योरिटी में है, लोग साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा रहे। तो मैं ये कहूंगा कि साइंस में खासतौर पे जो बेसिक साइंस है उस पर लोग ध्यान दें, और साइंस के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट उस पर लोग ध्यान दें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कभी नहीं छूटने दें अपने हाथ से। और रतन भैया भी कह रहे थे कि अगर आप देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आती, सिर्फ हम सोच नहीं पाते। दरअसल हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास की चीजें हमारे कितने काम की हैं। ये दरख्त का पत्ता गिरता है, आपको पता है कि दरख्त का पत्ता, सूखा हुआ पत्ता मिट्टी के लिए कितना फायदेमंद है और क्यों फायदेमंद है? ये मिट्टी को पोरस बनाता है ताकि पानी नीचे जड़ तक जा सके। इसलिए अच्छी मिट्टी बनाने के लिए जरूरी है उसमें दरख्तों के सूखे हुए पत्ते शामिल हों। बहुत जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खाद का इस्तेमाल करें। मैं भी किचन गार्डन करता हूं, मैं बता रहा हूं मैं क्या करता हूं। मैं कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खल्ली, अगर नीम की खल्ली नहीं मिला तो नीम के सूखे हुए पत्ते को सुखा करके उसको मिट्टी में डालता हूं, सरसों की खल्ली,
ये सब चीज़ें, ये जो चूना खाते हैं लोग खैनी वगैरह में, पान में, वो चूना अगर मिट्टी में डालें तो बेहतरीन खाद। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि अगर पानी डालना है, खाद का कोई पानी डालना है, तो आपके घर में रोज प्याज लहसुन की जरूरत पड़ती है। प्याज का जो छिलका है और लहसुन का जो छिलका है और सूखे पत्ते हैं, केले का छिलका है, इसको सुखा करके आधे बाल्टी पानी में 3 दिन छोड़ दीजिए। चौथे दिन उसमें उतना ही पानी मिला के एक मिनट पानी अपने सारे प्लांट में डाल दीजिए। दैट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। वो फंजीसाइड है। नीम का तेल है, आप कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे मत कीजिए, नीम का तेल स्प्रे कर दीजिए पत्तों पे, खत्म है। किसी जरूरत नहीं केमिकल फर्टिलाइजर। चीजें हमारे पास हैं, हम इन चीजों को देखते नहीं है, सोचते नहीं है। हम YouTube तो देखते हैं, लेकिन YouTube में ये चीजें नहीं देखते। ये कितनी करामत में नहीं आया, मैं कुछ फैक्ट्स रखने आया हूं कि आप साइंस को तवज्जो दें। आप आर्ट्स पढ़ें, जो पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइंस आपके जिंदगी में है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। साइंस को आप समझें, उसका बेस्ट यूज करें। और जैसा कि इस बार का थीम है, अभी नैयर भाई भी बता रहे थे कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो इस तरह के इन्वेंशंस करें जब आप साइंटिस्ट बने, ताकि लोगों के काम आ सके, वो लैब में ही बंद नहीं रहते। सो थैंक यू, आई हैव टेकन टू मच टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे बीच जनाब वेरी हैप्पी नेशनल साइंस डे। प्रदेश साहब ने बहुत तफसील के साथ ये बात बताई। बच्चों के अंदर थिंकिंग पैदा करनी चाहिए, समझना चाहिए किसी चीज को। और अगर आप समझो, जो वर्ड है समझो, अगर इसको अगर एक्सप्लेन करें, उससे यही बात आती है, क्या है SANJH, समझो। साइंस अब मेरी जिंदगी में होगा। आज जो नेशनल साइंस डे मनाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, पर्पस यही है कि बच्चों को साइंस के लिए इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, बच्चे साइंस में आगे बढ़े, साइंस को अपनी जिंदगी से समझें। और ब्यूटीफुल चीज साइंस के लिए ये है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास में, सबको आप अपनी जिंदगी से जोड़ के समझ सकते हैं। और जिस वजह से ये नेशनल साइंस डे मनाई जाती है, वो वजह भी इसी सोच से पैदा हुई। परमेश्वर साहब ने ये तो कहा कि ये साइंस डे कैसे स्टार्ट हुआ, 1987 में ये हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ मनाना। तो ये बात कैसे पैदा हुई, तो ये इसकी ओरिजिन क्या, कि कैसे मनाया जा रहा है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष जो है 28 फरवरी को साइंस डे मनाई जाए। तो बात 1921 की है। इंग्लैंड में, लंदन में यूनिवर्सिटी कांग्रेस की मीटिंग, दुनिया के हर जगह से लोग आए हुए थे। तो जब वो मीटिंग खत्म हो गई, तो लंदन से ऑस्ट्रेलिया का सफर था, शिप जा रही थी, 2 शिप था उसमें, स्टेम शिप थी, एक का नाम था नारकोंडा, एक का नाम था नारडेरा। उसकी स्पीड आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस जमाने में चूँकि पानी का जहाज ही चलता था, उसकी स्पीड थी उस वक्त 31 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत स्लो स्पीड थी। तो समंदर में चलते हुए डॉक्टर सीवी रमन ने ये देखा कि समंदर का पानी नीला क्यों। वही पानी जब हम गिलास में लेते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और वो पानी जो समंदर में वो नीला है। तो इस पर फिर ये बात शुरू हुई कि समंदर का पानी नीला क्यों। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने में, जिनका नाम था लॉर्ड रेली। उसने ये कहा था कि आसमान नीला क्यों, उसने ये थ्योरी दी थी आसमान नीला क्यों है। तो लोगों ने फिर यही से ये समझना चाहा कि जिस
जैसे आसमान नीला है उसी तरह जो है समंदर का पानी भी नीला है। जिस वजह से आसमान नीला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, उसी वजह से समंदर का पानी भी नीला है। बहरहाल वो इसको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। इस दो अलग अलग फेनोमेना है। आसमान एक अलग चीज़ है, समंदर का पानी बिल्कुल अलग है। दोनों के एक ही फेनोमेना कैसे हो सकता है? बहरहाल वो कोलकाता में एक लेबोरेटरी थी जिसमें वो काम किया करते थे। वहाँ आए वो और 7 सालों तक उन्होंने रिसर्च की। 1921 से लेकर 1928 तक उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और 1928 को उन्होंने ये थ्योरी दिया। लॉर्ड रेले ने ये कहा कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है, उससे वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी जो इंसिडेंट है। वही उन्होंने नाम दिया जो उनका इन्वेंशन था और जो डिस्कवरी की उन्होंने, उसका नाम था रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट इतना मशहूर हुआ उस जमाने में, पहले एक साल में 700 पेपर पब्लिश हुए। इंडिया में सिर्फ 700 पेपर पब्लिश हुआ और आज के ज़माने में वो इतना मशहूर है इफेक्ट। एक्चुअली मटेरियल साइंस से रिलेटेड है और मैंने पीएचडी किया है मटेरियल साइंस में। तो मैंने इसको किया है रमन इफेक्ट को इंदौर में। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कंसोर्टियम है, वहाँ लैब है। जब मैं रिसर्च कर रहा था अलीगढ़ में तो मैं गया था इंदौर, वहाँ एक टीचर थे तो मैंने उनसे परमिशन लिया तो उनका ठीक है आप आइए। तो वो इतना मशहूर है इस वक्त, ये हजारों पेपर पब्लिश हो रहे हैं रमन इफेक्ट हर साल। और बात जैसे हुआ क्या कि जब मैं पेपर मैंने भेजा 2017 में, मैंने पहला पेपर पब्लिश किया था। अभी सिर्फ रमन इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो वो पेपर मैंने 4-5 जगह भेजा पब्लिशर को, वो पेपर रिजेक्ट हो गया, पब्लिश नहीं हुआ। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप रमन इफेक्ट करा दीजिए। वो मटेरियल था फेरस डॉप TiO। तो मैंने उसका रमन इफेक्ट करवाया, उसके बाद और भी कुछ मैंने फोटोकेमिक एक्टिविटी वगैरह करवाया। तो फाइनली वो पेपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में पब्लिश हुई और वो इतनी मशहूर हुई पेपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स 2016 और 18 के लिए बेस्ट कंट्री के लोगों को एशिया में नहीं मिला था नोबेल प्राइज। तो ये गर्व की बात थी, एक सम्मान की बात थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जैसे परवेज साहब ने कहा कि 1987 में ये डिसाइड किया गया कि इसको हर साल जो है नेशनल साइंस डे मनाई जाए और बच्चों को इंकरेज किया जाए। बहुत सारी चीज़ें देखिए स्कूल में पढ़ाई जाती है, आज क्या है क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। अब जैसे उन्होंने सोचा कि आखिर समंदर का पानी नीला ही क्यों है? अगर हम आप होते तो क्या कहते हैं, अरे भाई नीला है तो हम उसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, जैसे आसमान नीला है। तो ये बच्चों को सोचना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है आखिर ये बात क्यों पढ़ाई जा रही है, आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है। सपोज करें स्कूल में पढ़ाई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता होगा कि अगर किसी गिलास में पानी है और उस पर अगर आप ढक्कन लगा दें, ठीक है, फुल गिलास टम्बलर को पानी है उसमें आप ढक्कन लगा उसको पलट दें तो क्या देखते हैं, ढक्कन नहीं गिरता, ढक्कन नहीं गिरता है। हम आप जानते हैं, आप गिलास को इन्वर्ट कर दीजिए, पानी से भरे हुए गिलास को और उसमें ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन मीन्स की लूज ढक्कन नहीं लगाना, लूज ढक्कन। तो आप देखेंगे इन्वर्ट करने के बाद भी गिलास वो ढक्कन नहीं गिर रही, फॉल नहीं कर रही है। तो अब स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो किताबों में क्या लिखा हुआ है कि हवा भी बल लगाती है, द एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो अब क्या एयर में इतना प्रेशर है वो उस ढक्कन को संभाल सके, जबकि ऊपर से पानी भी प्रेशर लगा रही है। अगर एयर में इतना प्रेशर होता है तो सपोज ये जो पीस ऑफ पेपर है, अगर मैं इसको रखता एयर में तो ये रुक जाती। अगर एयर में इतना प्रेशर होता है तो ये पेपर हवा में रुक जाती। इसका मतलब एयर में इतना प्रेशर नहीं है इस पेपर को संभाल सके, तो ढक्कन को कैसे संभाले हुआ है, ढक्कन क्यों नहीं गिर रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों जो है ढक्कन नहीं गिर रही है। सिर्फ हवा के प्रेशर की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है और उसको बच्चों को बताने की जरूरत है आखिर ये पढ़ाई जा रही है। में अनीशा, रिक्वेस्ट टू अनीशा भारती
इन्होंने प्लीज कम ऑन द डाइस और अपनी स्पीच को ऑन द ओकेजन ऑफ साइंस डे अब अपनी स्पीच। आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनीशा भारती, कक्षा 9वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष विज्ञान दिवस के अवसर पर वैदिक साइंस के टॉपिक पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। तो भारतीय परंपरा में यह विश्वास पाया जाता है कि मानव को श्रेष्ठ जीवन पद्धति से जीने के लिए वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर ने हमें दिया था, जिसमें समस्त ज्ञान विज्ञान पर आधारित परा यानी आत्मज्ञान और अपरा यानी संसारिक ज्ञान का उपदेश मिलता है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से इसे अंधविश्वास और अश्रद्धा के कारण आज का मानव इसे पुनः ढूंढने का प्रयास करता है। इसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक ज्ञान ही अत्याधुनिक ज्ञान सिद्ध होता है। जैसे यजुर्वेद में लिखा है कि सूर्य जो है वो स्थिर नहीं है, यानी द सन इज नॉट स्टेशनरी। और जब साइंस में ये डिस्कवर हुआ कि जो सन है वो अपने स्टेट पर एक्सिस करता है और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों ओर अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो ऐसे लोग थे जिनको पता था कि यजुर्वेद में ऐसा लिखा है कि द सन इज नॉट स्टेशनरी, तो वो इसका मजाक उड़ाने लगे। पर बाद में जब साइंस और आगे हुआ, एस्ट्रोलॉजी में और डेवलप हुआ, तो ये सिद्ध हुआ कि जो सन है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि वो गैसेस से मिलकर बना है और वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। साथ ही के चारों ओर ग्रह हैं, वो सभी ग्रह के साथ मिलकर पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का वो रिवॉल्व करते हैं। और यदि हम बात करें इतिहास की, तो हमने हर बड़े देश में क्रांति पढ़ी है, जैसे ब्रिटेन की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चाइना की क्रांति, लेकिन हमने भारत की क्रांति नहीं पढ़ी है, क्योंकि क्रांति वहाँ होती है जहाँ अंदर ढूंढने की इच्छा होती है, वहाँ संक्रांति होती है। इसीलिए भारत में क्रांति नहीं, संक्रांति घटित होती है। अब यदि हम विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले नाम महर्षि कनाद का आता है, जो कि 6th सेंचुरी BC में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। वैसे उनका आश्चर्य की बात ये है कि डाल्टन से करीब 2600 वर्ष पूर्व ही उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। और उसी समय में पकुरा कत्यायमा जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एटॉमिक थ्योरी दी थी। और इनके बाद एंशिएंट इंडिया के जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है वराहमिहिर। इन्होंने अपने हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने जैसे उदाहरण दे तो मेडिकल साइंस में सर्जरी और मेडिसिन ये दो प्रमुख डिविजन्स होते हैं। तो उस समय में मेडिसिन में अत्रिय ऋषि और चरक का हाथ सबसे आगे था। और उसके बाद सर्जरी में सुश्रुत का हाथ सबसे आगे था। वो जो सिकंदर अहमद मेमोरियल करियर गाइड एकेडमी के प्रांगण में आज साइंस डे के मौके पर मौजूद हमारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों और साथियों, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सारे स्कूल के बच्चे साइंस डे के मौका पर आज एक जगह गैदर हुए हैं, बैठे हैं और आज साइंस डे मनाया जा रहा है। और हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों को ये बताना, ये जानना निहायत जरूरी है। हर डे का, साइंस डे का भी एक अपना एक खुसूसियात है कि क्यों हम लोग इसको बनाते हैं। और इस साइंस डे के मौके पर मेरे ख्याल से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ क्रिएशन क्या होगा,
जिसको आज यहाँ नुमाइश के तौर पे पेश किए होंगे या उसकी पेश की होगी। इस सब करता है कि उसकी पहले इब्तदाई तालीम स्कूल में होती है, फिर स्कूल के बाद वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद वो फिर हायर एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर जाकर फिर वो साइंटिस्ट बनते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐसे बच्चे, बैठे हुए बच्चे हमारे मुस्तकबिल के साइंटिस्ट हो सकते हैं। इसी बैठे हुए बच्चे में से हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर हो सकते हैं। हमारे मुस्तकबिल के क्या पता, मुझे नहीं मालूम, हम सबको नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आज के ये बच्चे मुस्तकबिल के बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, मुस्तकबिल के बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, मुस्तकबिल के बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, मुस्तकबिल के बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। एक इसके साथ एक लफ्ज मैं ये जोड़ूंगा, तालीम हासिल करना सिर्फ ये मकसद नहीं कि मैं इंजीनियर और एक डॉक्टर बनूं या बहुत बड़ा राजनेता बनूं। अदीब हैं, वो ये चाहते हैं, तालीम का सबसे अच्छा मकसद क्या होता है? वो होता है कि आप सबसे बढ़िया और बाअदब इंसान बने। कुछ बनने से पहले बाअदब इंसान बने, तब उसके बाद कुछ भी बने, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। शुक्रिया। और अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैद मुईज़ है, मैं दर्जा 9 का तालिब इल्म हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस के कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ। सोच से पैदा होने वाले सवालात और इन सवालात से बनने वाले ख्यालात को ढूंढने की इंसान की कोशिश और कोशिश से नतीजे में मिलने वाले जवाबात, इन्हीं कोशिशों और जवाबों ने एक नए इल्म को तश्कील दी, जिसे फिजिक्स का इल्म भी कहा जाता है। वैसे तो ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है फिजिका, जिसका मतलब होता है नेचर या नेचुरल साइंस। फिजिक्स का मतलब है अपने आसपास की कायनात को अच्छी तरीके से देखना और स्टडी करना। पता नहीं कौन आदमी था, उसका क्या मकसद था, इसके कवानीन को अमली शक्ल देना है। यानी इंजीनियरिंग इस अप्लाई हाउस इतने बड़े और इतने तेज होते हैं कि मीलों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। और दूसरी बात, यह भारी वजन के भी होते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की जाए तो इसने समुद्री जहाज बना कर दी, जो फिजिक्स की सारी ब्रांचेज हैं, जिसने इंसानियत के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कभी भी किसी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की। हमारे पास दूसरी तरफ हमारे पास मेडिकल साइंस आती है। मेडिकल साइंस एक वाहिद साइंस है जिसकी वजह से आज इंसान जिंदा है। हम देखते हैं पुराने ज़माने में हमारी खुराक इतनी अच्छी नहीं थी, यानी खाली चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जल्दी मर जाया करते थे। तो मेडिकल साइंस ने छोटे छोटे बुनियादी खलियों, जिन्हें सेल्स भी कहा जाता है, उसकी स्टडी की। उसकी स्टडी में हमें ये पता चला कि कौन से, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोग एक बार विज़िट पहले हो जाता। अच्छा, रिज़ल्ट हम लोग अनाउंस कर देते हैं। साइंस डे पे जो बच्चे आपने जो पार्टिसिपेट किया, आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स आप लोग टेंट के अंदर आ जाएं। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर आप लोग अपने प्लेस पर दोबारा जाएंगे। हमारे गेस्ट जो हैं वो आपके मॉडल्स को विजिट करेंगे। मैं रिज़ल्ट के लिए चेयरमैन ऑफ द स्कूल को इनवाइट करता हूँ, वो प्लीज़ स्टेज पे आए और साइंस डे, आज बच्चों ने जो मेहनत किया है साइंस क्विज में, साइंस मॉडल में एंड साइंस डिबेट में, इन सब का रिजल्ट को एक साथ अनाउंस करें। जिनका मॉडल है वो भी, जितने बच्चे वहाँ कैंटीन के पास हैं वो यहाँ स्टेज के पास आ जाएं, टेंट के अंदर आ जाएं।
रूम में अगर कोई बच्चे हैं तो वो भी आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं। जगह नहीं मिलती है तो 2-2 करके बैठ जाएं। आज आप लोग साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे तो बच्चों का मॉडल और उनका प्रोजेक्ट देख करके ऐसा लगा, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो टीचर्स की मेहनत और बच्चों की लगन के हिसाब से जो मॉडल बच्चों ने पेश किया है कि एक नमूना और वर्किंग, नॉट ओनली शो, सारे मॉडल्स वर्किंग पोजीशन में बच्चों ने पेश किया और बहुत कम गाइड टीचर्स से मिले होंगे या मिले भी नहीं होंगे। तो ऐसा लगता है कि कैरियर गाइड एकेडमी दूसरा सीबी रमन पैदा कर सकता है। और जो रिजल्ट सामने आए हैं, इतना टफ कंटेस्ट है कि 3-4 लोगों ने मार्किंग किया है, सबका एवरेज करके जब रिजल्ट सामने आया है तो कोई किसी से कम नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ से हम सिर्फ नंबर, ये 20 नंबर का था, कितने नंबर का था? 20 मार्क्स का था ये। उस 20 मार्क्स में किसने कितना नंबर लाया मैं सिर्फ उतना बता देता हूँ, ठीक है? और जैसा कि प्रिंसिपल साहब सुफियान अहमद कह रहे थे, ये इसका जो प्राइज है और सर्टिफिकेट है ये आपको कल मिलेगा, ठीक है? आज वक्त की कमी हो गई है, धूप काफ़ी हो गई है, आप थक भी गए हैं, फिर आपको खाना भी खाना है, घर भी जाना है। तो लिस्ट के हिसाब से नाम पढ़ देते हैं। अर्थक्वेक, अल्तमस आतिफ, क्या सन्नान और नदीम, इनको आया है 20 में 18 नंबर, जोरदार तालियां। अतहर शाद और मुक्तदिर असदुल्ला, इनको आया है 15th मार्क्स, 15 नंबर। उसके बाद जैद मोइज, इनको भी आया है 15 नंबर। जैद मोइज का था 3D होलोग्राम। उसके बाद है मोहम्मद वली आदिल नूरुल्ला, इनका था वाटर टैंक एडार, इनको मिला है 18 मार्क्स, 18 नंबर। अनीशा भारती, साक्षी भारती, इनका था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वेस्ट मटेरियल। आप कंपटीशन देख सकते हैं, इनको भी आया 18 नंबर। और सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, ये क्लास 9th का रिजल्ट सुना रहे हैं, क्लास 9th का रिजल्ट है। सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम इम्बसात अंजुम और गौसिया एरम, इनको आया 19 मार्क्स। मैं खुद खड़ा हुआ था, इन लोगों ने जो एक्सप्लेन किया वो मार्वेलस था। सादिया तरन्नुम और सृष्टि, इनको आया 18 मार्क्स। इनका टॉपिक है लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म, लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म। सना राशिद, डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल, इनको आया है 16 मार्क्स। अरसला एहतशामी, आसिया जर्रीन, अरसिया आदिल, इनका मॉडल था वर्किंग मॉडल ऑफ किडनी, किडनी का बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, इनको भी आया है 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, 18 मार्क्स। आप कंपटीशन देख सकते हो।
आयुष कुमार और सूरज कुमार, और ये तो क्लास 5th है। आयुष कुमार क्लास 8, आयुष कुमार एंड सूरज कुमार, इनका मॉडल है लाइटनिंग कंडक्टर, इनको है 15 मार्क्स। दिलराज, शहजेब और आमिर रजा, इनका मॉडल है अराउंड ऑर्डिनो यूनो डिस्टेंस, इनको है 15 मार्क्स। सादिया रहमान, ये क्लास 8th के बच्चे हैं, ये सारे के सारे क्लास 8th का रिजल्ट हो रहा है। सूफिया तरन्नुम, सादिया रहमान, मुदस्सिरा, इनका है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाई व्हील, इनको है 18 मार्क्स, 18 नंबर। सूफिया तरन्नुम, राहिना बसरी, इनको है 19 मार्क्स। इनका टॉपिक है सोलर सिस्टम। उसके बाद है जो फशन और नूरानी, इनका है रेन वाटर हाइड्रो हार्वेस्टिंग, इनको है 17 मार्क्स। ये क्लास 8 हो गया। और क्लास 7th में लतिका मल क्लास 7th 18 मार्क्स। लतिका मल 18 मार्क्स। इनका टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग, वर्किंग पोजीशन में देखा गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये 1920 की तरफ जा रही थी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन 17 मार्क्स। वाटर साइकिल, इनको है 16 नंबर। सोफिया सोलर सिस्टम, इनको भी आया 16 नंबर। क्लास 3rd, तीसरा क्लास 15 मार्क्स। लिबा नवाज, नॉन वर्किंग मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट, इनको है 16 मार्क्स। क्लास 4 असद मदनी, इनको है 18 मार्क्स। इनका टॉपिक है ड्रिप एजुकेशन, बहुत अच्छा दिखा है वर्किंग पोजीशन में। अरशान इमरान वोल्केनो, इनको है 16 नंबर। जैद ड्रिप इरिगेशन, इनको है 16 नंबर। कशफ जावेद विंड टरबाइन, इनको है 17 नंबर। और साहेब रजा कॉलिंग ड्रिप इरिगेशन, जोरदार ताली, 19 मार्क्स। कॉल करने से आप कहीं भी रहें, लंदन में रहें, अमेरिका में रहें, आप वर्किंग पोजीशन में देखा है इन्होंने कॉल करके। सफकत, इसका है सैटेलाइट, इनको है 15 मार्क्स। असजद मदनी, इनको देखा अदिला आफरीन एयर पॉल्यूशन 17 मार्क्स। जैद कमर, अनस रहमानी विंड मिल, इनको है 16 मार्क्स। क्लास 3 में निखिल अंकित कुमार संजय जिशान 15 मार्क्स, इनके हैं प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आंसर उसने थोड़ा गड़बड़ा दिया, मैं खुद था वहाँ मौजूद। इनको पूछा गया कि इस फिल्ट्रेशन किट में क्या डाले हो, तो वो कैसे फिल्ट्रेशन होता है, तो मैंने हिंट्स दिया, तब वो बोला और कि बालू और कंकड़ी इसमें मिलाई है मैंने, उसको ऊपर दिया। तब उसने आंसर दिया, जिसकी वजह से, वरना बहुत अच्छा मॉडल था वो।
तो ये रिजल्ट्स हैं, आप लोग नंबर से अंदाज लगा लिए होंगे। 19 हाईएस्ट आए हैं हर क्लास में, जो फर्स्ट पोजीशन होगा। जितने को 18 आया है वो सेकंड पोजीशन होगा। रेस्ट 17 को थर्ड पोजीशन होगा। बाकी सबको कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा, सारे पार्टिसिपेंट्स को। इसका है 19 मार्क्स। इन लोगों ने जो आप लोगों ने जो प्रिंट किया है, किसी का कहीं क्लास वाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास वाइज होगा तो क्यों होगा? अरमान 16 मार्क्स इसका तो हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर आए हुए हैं, वो आपके मॉडल्स को रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे। आप अपने मॉडल पे चले जाएं सारे बच्चे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा हाउस है जो चारों तरफ से ग्लास से बना हुआ है, और उसका रूफ भी ग्लास से बना है। जब सन से हीट उसके ग्लास के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो वो नॉर्मली हीट प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, और जब हीट रेडिएट होती है वापस तो ग्लास अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हमें volcanic eruption is related to the earthquake. How the हम उनको कह रहे थे कि हमारा गैर हम सारे डस्टबिन में जाएगा और इसमें कचरा रहेगा वो सूखा वाला। और जैसे कि यहाँ पे हमारे अररिया में म्युनिसिपल की तरफ से फिक्स है कि एक टाइम में दिन में एक बार गाड़ी आती है, लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं है। आपके घर में कचरा है, आपको अलग गाड़ी आएगी वो साफ हो जाएगा। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ की सब लोग बोल रहे थे सोलिंग इरिगेशन बाहर भी हैं तो इरिगेट हो सकते हैं। वो कौन सा है, किस जगह है? ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ बताइए। This presenting water model is showing to our as we know the earth is melting global warming affects our lives in very ways. As we know that the sun traps greenhouse gases like CO2, CH4, water effects like trees, different trees, cutting of trees, etc. Mainly CO2 traps more and more heat of the sun due to glaciers being melted. Animals are lost their
काउज बता रही हो, क्या है ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा बर्फ पिघल करके नदी नाले में नदियों में आ जाते हैं, नदियाँ में सैलाब आ जाते हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग से ये पहाड़ ये बर्फ ज्यादा पिघल करके आते हैं, जिसकी वजह से सैलाब बाढ़ अपने इलाके में ज्यादा आता है। ये ग्लोबल वार्मिंग लेवल बढ़ रहा है, वाटर ऑफ लेवल इज हाई। ठीक है, बहुत अच्छे है। इसका बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, इसका वीडियो रिकॉर्ड है, देख सकते हैं। वर्किंग मॉडल है, कोई ऑब्जेक्ट आया सामने आता है तो उसको डिटेक्ट करके वो वहाँ रुक जाता है। ये क्या है? ये ऐसे टैंक जो लड़ने के लिए जाते हैं, टैंक हमारे उसमें इसका यूज हो सकता है अथवा नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ। What is the main region of pollution in our area? In our area, not all over Bihar or India. अगर हम लोग बिहार की बात करें, Not Bihar, only this area, this Simhanchal, especially area. बिहार में अगर अररिया की बात करें तो यहाँ पे चूल्हा में ज़्यादातर खाना होता है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। और इसको अगर हम लोग LPG यूज़ करें तो उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। ये मॉडल में सॉल्यूशन है क्या है? पोल्यूशन का सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो मॉडल में नहीं है, लेकिन हम लोग बता दें। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि अपने अररिया जिला में डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, डस्ट पार्टिकल। यहाँ की मिट्टी बालू वाली है, जरा सा मोटर चलता है, हवा चलती है, ये बालू उड़ करके जो है आपके एयर में मिलता है और ये मिक्स होता है। इसको आप प्राइमरी पोल्यूशन कहेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे? तो दिस इज द मेन काउज इस एरिया के लिए। डस्ट पार्टिकल ये पूरे एयर में ये करता है, पोल्यूट करता है, और जो हम लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कहीं पे आपको पूछ सकता है कि आपके एरिया का मेन कॉज क्या है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से सबसे पहले आदमी को इफेक्ट करता है। कौन सी बीमारी सबसे पहले? सर एयर पोल्यूशन से हेडेक भी होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। वेरी गुड। सबसे पहला क्या होगा? सांस की बीमारी होगी। सांस की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत। जी सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होता है, पहले हम लोग यही पढ़ रहे थे, लेकिन इधर अब कुछ चेंज हुआ है, कुछ और बनाते हैं सर। कितने? हाउ मेनी प्लैनेट? 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. सबसे चमकता हुआ प्लैनेट? वेनस।
स्लो वाटर पॉल्यूशन। जैसे फैलेगा तो और कहीं पे नहीं होगा सर। और जब कहीं पे जा रहे हैं कार में बैठे हुए तो कार पे और कार में ही बैठना चाहिए सर। मैं कार से बाहर क्यों कार एक पेंडिंग रहता है, कार पे गिरेगा कोई असर नहीं पड़ेगा, कार पे गिरेगा और नीचे गिर पाएगा सर। इसलिए अगर हम लोग कहीं पे हैं तो रहना चाहिए। आज के जो सीसीटीवी कैमरा उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कोई आइडिया सीसीटीवी कैमरा आपके लैपटॉप में कोई पर्सन अंदर जा रहा है तो उसका आप यहाँ से जाने और आने में कितना टाइम लगा वो भी हमको पता करना। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इनटू डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड बाय फॉर्मूला। जैसे हमको 30 सेंटीमीटर निकालना है तो 30 सेंटीमीटर का निकाला हुआ होता है, निकाल लेंगे उसको बताएंगे कितना टाइम लगा हमको उतना वेट करने में, कितना में लगा हमको इतना वेट करने में, तो उसका टाइम निकालने का। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा लाइटिंग कंडक्टर है और ये बिल्डिंग के ऊपर चलेगा और साइड लगा पहले होता था मेटल लगा हुआ अब वो बायोगैस सेफ हो जाएगा और अमनिया लगाना चाहिए सर। ये कॉपर बेस्ट सबसे अब गैस आया, गैस से क्या
और गैस से क्या करें? ठीक है। नाइट दिखता है, किसका शेडो होता है कि नाइट दिखता है? किसका शेडो होता है कि नाइट दिखता है? अभी तो प्रैक्टिकल ही हो रहा है, तो बता रहा है। प्रैक्टिकल तो सब बनाया है ना। हमरा कैमरा, हमरा कौन कैमरा? ना, मेरे पास मोबाइल है, छोटका हाथ तो है। ये एक तरह का सोलर सिस्टम का अल्टरनेट हो सकता है क्या? सोलर सिस्टम में भी ऊपर से भी फिलहाल ये डिवाइस पे आता है, ये आपका ये बर्निंग करके वहाँ ऐसा चीजों की आता है जिसकी सब अवेलेबल नहीं रहता है, तो सर ये हमारा एक पैनल है जिसके थ्रू हमने माइक फिट किया है, और जो ये इसके चलिए गैस जा रहा है, जो मल्टीमीटर है, वो एक इसके थ्रू होते हुए और इसके लिए एयर पोल्यूशन को हम ये इधर से होते हुए वाटर बॉडी में आएगा। अब ये वाटर बॉडी में स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम लोग स्टोर करेंगे। एक और रखा है, इसके बॉडी जो है कंटेंट हो गया है, ये हो जाएगा, और ये थोड़ा बहुत भी कंटेंट बचा रहेगा, ओवरऑल कम होगा, और काम भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ऑब्जर्व करता है, तो फिर वो जो भी गैस होगा जो पॉल्यूटेड वाला होगा उसके थ्रू हमारे यहाँ ना ही एयर पोल्यूशन होगा, ना ही वाटर पोल्यूशन होगा, और जो गार्बेज है वो भी नहीं रहेगा, और इससे ये होगा कि हमारा सराउंडिंग जो है वो एकदम साफ रहेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। परिषद के मेंबर है, उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है, जितना वेस्टेज इसको ये बच्ची बहुत शरारती है, पॉल्यूशन का है, डबल स्टार्ट हो गया। ये है और सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी किसका डिस्चार्ज काम इसका रिक्स मेरे पास है। कॉल करो, स्टैंड हो रहेगा तब नहीं, बिना स्टैंड का काम कैसे करेगा? कितना कितना रखें? पानी है? यहाँ पहले खारिज होंगे तब ना भाई, यहाँ से खारिज हो रहे हैं।